ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 7 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਮੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DMRC ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਰਾਇਲ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪੋਲੋ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। की दुनिया की भलाई और दुनिया में शांति भाईचारा बना रहे इसकी अरदास की है। और हमारे 5 तख्तों में से एक तख्त श्री पटना साहिब है, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। जुल्म के खिलाफ लड़ाई का जहां से प्रारंभ हुआ था, तो आज आशीर्वाद लिया है नतमस्तक। जहां आके किसको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली और यही अरदास की है कि देश में शांति भाईचारा बना रहे और तंदुरुस्ती और तरक्कियां। ਤੇ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 13 ਤੋਂ 16 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 18 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 19 ਮਈ 2026 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। 26 ਮਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ 29 ਮਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।
18 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इस खबर से ज्यादा जानकारी के लिए मोगा तो साडे रिपोर्टर गुरुदेव हम साडे नाल जुड़ चुके हैं। जी गुरुदेव, की कहना चाहोगे तुसी, की खबर है पूरी? बिल्कुल जी, मोगा की गल की है। मोगा के 50 नगर निगम के जिहड़े कागज भरे गए हर पार्टी वालों तकरीबन सारिया नगर निगम के चुनाव 50 वार्डों के सारिया पार्टियों वालों कागज भरे गए हैं। तो अज जी स्कूटिंग चल रही है, उन्होंने कागज देखभाल चल रही है। इन्हें देखा जाए दूजी गल की जाए तो मोगा के 50 वार्ड की दूजी गल की जाए तो कोट सिगल के 13 जिहड़े वार्ड आ नगर पंचायत के चुनाव होने ते अज किते कल नूं कागज वापस का तरीका उस तो बाद जाके अखाड़ा पूरा भर जाएगा। शहर की सरकार जी बनी है, नगर निगम ने मेयर बने हैं या प्रधान बने हैं, नगर पालिका नगर पंचायत है पूरी तैयारी की गई है। ये प्रशासन वालों उन्होंने छानबीन की जा रही है। कल तो बाद कागज लैन की जी आखिरी डेट होगी, कागज वापस होगी या फिर कागज रद्द होंगे, आखिरी डेट होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। तो हुण गल करते हैं, हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग दे विच एक वड्डा प्रशासकी फेरबदल कदम चुक्या है। 17 IPS अते 3 HPS अधिकारियों के तबादले अते तुरंत प्रभाव के नाल नियुक्तियां कीतियां गईयां ने। गृह विभाग वालों जारी किए गए एक आदेश अनुसार गुरुग्राम, करनाल, हिसार, पंचकुला अते राज अपराध शाखा समेत कई अहम अहुदियां ते नवे अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस दे नाल ही सिबाश कबीराज जो कि पंचकुला पुलिस कमिश्नर वजों सेवा निभा रहे सन अते SCRB का वाधू चार्ज संभाल रहे सन, उन्होंने गुरुग्राम का नवा पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इस दौरान गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा नूं पुलिस हैडक्वार्टर पंचकुला का ADGP नियुक्त किया गया। सूबे दे विच नशिਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ लगातार पंजाब सरकार वालों युद्ध नशिਆਂ विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है। इसे लड़ी दे विच अमृतसर पुलिस ने एक नशीले पदार्थ और गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक दोषी नूं भी गिरफ्तार किया है तो उसके कोलों 2 किलो तो वध हैरोइन और 7 आधुनिक पिस्तौल बरामद किए गए हैं। मुढ़ली जांच तो पता लगा है कि गिरफ्तार दोषी वर्चुअल नंबरां राही विदेशों के स्थित तस्करां के संपर्क दे विच सी। अमृतसर पुलिस ने इस मामले दे विच केस दर्ज कर लिया ते इस नैटवर्क दे विच शामिल होर साथियों की भाल की जा रही है। इस तरह के ਜਿਹੜੇ बड़े ਲੀਥਲ ਤੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਨੇ ਤੇ 2 kg 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ CIA ਮੋਲਕਦੀਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਾਡੇ ACP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ADCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ और ओवरऑल सुपरविजन DCP इन्वेस्टिगेशन रविंदरपाल जी की सुपरविजन रही है। एक इंपॉर्टेंट गल है कि बॉबी मल्होत्रा एक पुराना नोटोरीअस क्रिमिनल है इस एरिए का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी पुराना ਇਹਦਾ लिंक ਜਿਹੜੇ एस्टैबलिश होए ने और पाक बेस्ड स्मगलर्स, फॉरन बेस्ड हैंडलर्स ਦੇ काफ़ी नाम आए हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और मैनू उम्मीद है कि 1-2 दिनों च ही तुहाडे नाल फिर वड्डी रिकवरी असीं शेयर कर पावांगे, क्योंकि इहदे तो काफ़ी होर ऑपरेशन जिहड़े ब्रांच आउट होए ने और उस ते असीं लगातार काम कर रही हैं साडीआं टीमां। अमृतसर तो एक गोलीबारी की घटना सामने आई है। एक बाइक सवार हमलावरों ने एक टायर शोरूम से लगभग 8 राउंड फायर किए। शोरूम मालक हरप्रीत सिंह के अनुसार उसनों 12 मई को 50 लाख रुपए की फिरौती दी मंग करने की एक कॉल भी आई सी। शोरूम मालक हरप्रीत सिंह ने पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई। हरप्रीत सिंह ने अगे कहा कि वो अपने उसकी पत्नी नगर पंचायत रईया के 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ वार्डा तो चोणां लड़ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ਕਸਬਾ ਰਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ FIR ਨੰਬਰ 148 ਜਿਹੜੀ PS ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸਟੈਂਸ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਜਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹਿਤ ਔਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀਪਿਕਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਇਡਾ ਦੇ DCP ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। थाना इकोटेक 3 में बीती रात यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो हुण गल करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील तो बाद DMRC ने अज अपना पहला मैट्रो मंडे लॉन्च किया है। इस मुहिम के तहत आम और VIP दोवां लोगों को सड़की आवाजाही की बजाय मैट्रो की वरतों करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते दे विच 2 दिन घरों काम करन अते हर सोमवार को मैट्रो मंडे मनाउण के निर्देश दिते ने। यात्रियों की सहूलत के लिए DMRC ने ट्रेनां दीयां यात्रावां दी गिणती वधा दित्ती है। अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि अभी आर्थिक मंदी आ चुका है, आने वाला भी है, फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा संकट छा सकता है। तो हम लोग को उसके लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा कुछ न कुछ विचार करना चाहिए और जनता का सहयोग चाहिए इसमें कि हमें अच्छा से अच्छा सहयोग मिल सके और प्रधानमंत्री को उनकी बातों पे अमल कर सके और आगे बढ़ा सके हम लोग। कि हाँ, ये सरकार के लिए सही सोच है। हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए। जो खुद का पेट्रोल और डीजल का है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कम यूज कर सकें और वो फिर फ्यूचर के लिए हमें पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जो लोग जो है अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे थे वो उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील होएंगे वो, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अभी हमें फॉरेन करेंसी को बचाना है। जो हमारा मैक्सिमम पार्ट जो फॉरेन करेंसी का जो यूज़ होता है वो पेट्रोल डीजल पे होता है, हर आदमी जानता है। तो अवेयरनेस आई है लोगों के अंदर। मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद अब भारत भी आगे की तरफ अग्रसर है। भारत भी अब बड़े फैसला लेना शुरू हो गया है। दरअसल PM मोदी की अपील के बाद पूरे देश भर में इस अपील का असर देखने को मिल रहा है और पहल बाकी राज्यों से होकर अब दिल्ली यानी राजधानी दिल्ली तक भी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में भी सरकार ने इसको लेकर कई कदम उठाए हैं और अब कल DMRC ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अतिरिक्त मेट्रो चलाने का फैसला किया है। दरअसल DMRC की तरफ से कहा गया है कि अब प्रत्येक सोमवार को 6 अतिरिक्त मेट्रो चलाई जाएंगी और इनके साथ साथ 24 फेरे हर सोमवार को अतिरिक्त लगाए जाएंगे, यानी 24 जो अलग अलग फेरे हैं वो सोमवार को लगाए जाएंगे।
ऐसे में ये साफ संकेत इस वक्त मिल रहा है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की संकट के बीच एक भारी आर्थिक संकट पूरे विश्व में देखने को मिल सकता है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत इस वक्त चूंकि सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत ने पहले से आंकलन कर लिया है कि अगर आने वाले दिनों में आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा या इसकी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होगी तो अभी से कदम उठाना शुरू कर देना होगा। इसी को लेकर डीएमआरसी ने बड़ा फैसला लिया है। मैं इस वक्त आपको बताना चाहूंगा, हम इस वक्त सीपी में हैं, यानी दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में, जहां पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन 6 नंबर है। और आप देख रहे होंगे किस प्रकार से लोग मेट्रोज के सफर करके बाहर आ रहे हैं। काफी मात्रा में लोग यहाँ पर चल रहे हैं और जो सरकार की अपील है या जो अलग अलग विभागों की तरफ से अपने अपने दफ्तरों को लेकर या लोगों को लेकर जो फैसले लिए जा रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर आज की ये जो पहल है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये इसका जो है वो भारत को या भारत में जो ऊर्जा संकट हो रहा है या जो मिडिल ईस्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है तेल की आपूर्ति में, गैस की आपूर्ति में, या जो भी ऊर्जा से जुड़े हुए संसाधन हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखा जाए, या जो चीजें आयात होती हैं भारत में बाकी देशों से उनको कैसे कम किया जाए। क्योंकि जितना ज्यादा हम भारत में आयात करेंगे उतना ज्यादा भारत का जो रुपया है वो कमजोर होगा, डॉलर मजबूत होगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत भी चाहता है कि कम से कम इस दौरान में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो अर्थव्यवस्था का ढांचा है वो मजबूत रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसमें कहीं लूप होल ना हो। ऐसे में पीएम मोदी की एक अपील ने पूरे देश में, न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विदेश में भी, बाकी देशों में भी इसका ये सीधा सीधा संकेत दिया है कि अगर आप सही समय पर अपने आर्थिक ढांचे को, अपने इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है या इकोनॉमिक इकोसिस्टम है, उसको अगर आप सुरक्षित नहीं रखते हैं तो आने वाले दिनों में इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आज डीएमआरसी का ये फैसला, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और कई फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं, कई ऐसे फैसले जिससे सीधे लोगों से, यानी उनको जन भागीदारी चाहिए, जन भागीदारी की जरूरत रहेगी। तो ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े फैसले सरकार की तरफ से या अलग अलग राज्यों में सरकारों की तरफ से लिए जा सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ सकता है। आज जो डीएमआरसी ने फैसला लिया है उसके सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं, जो निजी वाहन हैं, उनमें कमी की जाए, जो पर्सनल वाहन रहते हैं उनमें कमी की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो के जरिए सफर करें। मेट्रो के जरिए सफर करेंगे तो पेट्रोल डीजल यानी जो ऊर्जा से जुड़े हुए संसाधन हैं वो बचेंगे। यही इस अपील का उद्देश्य भी है और इस फैसले का उद्देश्य भी है। इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली में, जहां पर ट्रैफिक दबाव का एक बहुत पुराना नाता रहा है, इसके साथ साथ प्रदूषण का एक पुराना नाता रहा है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आज सोमवार का पहला दिन इस फैसले के बाद, और ये एक मैसेज, एक प्रयोग के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये प्रयोग सही साबित होता है, सफल होता है, तो आने वाले दिनों में इस फैसले को विस्तार दिया जा सकता है। इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं डीएमआरसी की तरफ से की गई हैं, सुरक्षा अतिरिक्त लगाई गई है, जो टिकट काउंटर से उनको बढ़ाया गया है, उसके साथ साथ बाकी अन्य चीजों को भी बढ़ाया गया है। तो ये लोगों की सुविधाओं के लिए जो है वो किया गया है। तो फिलहाल देखना होगा आने वाले दिनों में इस फैसले का कितना असर होगा, कितना प्रभाव होगा, और भारत की इकोनॉमी जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है उस पर कितना असर पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन पांडे के साथ शीतल शर्मा, दिल्ली।